Hello, everybody. Welcome back once again to the today's session. In the last lecture, we had seen the procedural aspect had started, and one of those procedures, that is the entry point in GST, that is the registration, was started as well as completed. Now today, once you have taken up the registration under the GST law, you now will have to issue up what I like to call as a duty paying document. So why do I like to call it as a duty paying document? It is because the law prescribes that on the document that you issue, you need to have certain set of details. Now those certain set of details, they are important. However, it is not, say, a very hard and fast rule that अगर मैंने 15 चीजें प्रिस्क्राइब की है, so that I want all the 15 of it on that paying doc, on that duty paying doc, and therefore there are certain relaxations to it, as well as there are certain minimum prescribed criteria to it as well. So अब याद रखना, जो आपका मिनिमम प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया है ना, आपको उसको तो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है. देयर इज नो वे आउट टू एस्केप द मिनिमम. बट जो पूरे के पूरा आपने इतने 14, 15, 16 आइटम लिख के दिए, तब मेरे को सारे के सारे दिखाने पड़ेंगे क्या? सो दैट इज ऑल्सो नॉट द केस. एंड देयरफॉर व्हेन आई से दिस, what I am trying to tell you all is, one, you would have to understand कि जो आपकी इनवॉइसिंग है, it has to happen at what point of time. Plus you also need to understand कि वो इनवॉइस पे क्या क्या होना चाहिए. That is what is the bare minimum requirement, कि इतनी तो डिटेल मुझे निहाल इनवॉइस पे चाहिए, मतलब चाहिए. Now let us start our today's topic, that says tax invoice, debit and credit note. टैक्स इनवॉइस, जैसा कि आपको नाम पढ़कर भी समझ में आता है, जो आपकी इनवॉइसिंग होगी उस पर टैक्स का अमाउंट मेंशन. अब अगर मैं ये एक्ट खोल के प्रोविजन रीड करना स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मेरे को दिखता है कि अ पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, दैट इज आई एम हियर. A person supplying taxable goods shall issue before or at the time of. Now if you recollect, जब अपन ने अपना टॉपिक ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई देखा, वो टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक में अपन ये पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके. एग्जाम्पल अगर याद करो तो आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस से ट्रक निकल रही थी, एक केमिस्ट वाले का एग्जाम्पल दिया था कि उसके पास में दवाई नहीं है, तो ही विल नेवर से दैट आई डोंट हैव द मेडिसिन, he will always say that मैं मंगा के देता हूं. So that is called as making goods available. Second part जब मैं पढ़ता हूं, it tells me a person supplying taxable services. यहां पर अपन ने फिर रूल देखा था कि किसी किसी को 30 डेज में करना होता है इनवॉइस और किसी किसी को 45 डेज में. ये 45 डेज वाले आपके थे बैंक्स, एनबीएफसीज एक्सेट्रा. 30 डेज में थे बाकी के सारे अदर्स. So this is also taken care of. Next. अब ये बोलते हैं कि आपकी जो टैक्स इनवॉइस है,
आपकी जो टैक्स इनवॉइस है उसके कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी डिटेल है जो मुझे टैक्स इनवॉइस पर दिखनी चाहिए, is something that we are going to understand. It says name and address of the supplier, मतलब अगर मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूं तो मेरा डिटेल्स, इनवॉइस पे सीरियल नंबर होना चाहिए, दैट इज इनवॉइस नंबर होना चाहिए, मैंने कौन से डेट पे टैक्स इनवॉइस इशू की है वो डेट होनी चाहिए, मेरे रेसिपिएंट का नेम और एड्रेस होना चाहिए ऑब्वियसली विद द जीएसटी। पॉइंट ई इज समथिंग दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अच्छे से। पॉइंट ई सेज name and address of the recipient and the address of delivery along with the state and its state code. If recipient is unregistered and value is 50,000 rupees or more. So हुआ ये है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो, the value of supply is greater than or equal to rupees 50,000. तो आपको अपनी इनवॉइस पे स्टेट का नाम और उसका कोड देना। एफ यहाँ पर मोर देन था ना, अब लेस देन 50,000 की कंडीशन पॉइंट एफ में नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट and the address of delivery along with the name of the state and its code same hai. If the recipient is unregistered and where the value of taxable supply is less than rupees 50,000 and the recipient requests such details to be recorded in tax. So what is the difference between E and F? Whereas in point E, it was compulsory for you to record the details. In point F, so if the value of supply is less than 50, the mentioning of state code is dependent if the recipient asks for it. If the recipient does not ask for it, you do not actually have to record the same and give it to the recipient. Point G, आपका HSN code for goods and services. H, description of goods and services. I, quantity in case of goods and unit quantity code thereof. Unit quantity code आपका होता है say liters, kgs, pieces, sets, etc. The total value of supply of goods or services or both. Taxable value of supply of goods or both after taking into account the discount or abatement. So याद रखना, आज जरूरी नहीं है कि जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वही आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी हो। से फॉर एग्जांपल यू नो वी ऑल लव टू बार्गेन, अपन उसको बोलते हैं आई विल गिव यू 80 रुपीज, वो कोट करता है 100, देन वी से 80 से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलना। सो वो जब आपको इनवॉइस देता है वो लिखता है वैल्यू 100 minus discount of 20 rupees and hence it turns out something like this: 100, 20, 80. This is my total, this is my discount and this is my tax. इसके ऊपर टैक्स लगेगा as to whatever is the rate. फिर आपको रेट ऑफ टैक्स लिखना है, फिर आपको अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज लिखना है।
प्लेस ऑफ सप्लाई लिखनी पड़ी है इन केस इट इज एन इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई. बहुत सी बार क्या होता है, निहाल को एक चीज पसंद है, निहाल ने से उसको गिफ्ट करना था किसी को, तो जब वो गिफ्ट कर रहा है निहाल बोलता है एड्रेस मेरा लिखो और जो डिलीवरी है वो कई और लोकेशन पे करनी है. Therefore, ये जो इनवॉइस बनेगी आपकी, से फॉर एग्जांपल ये गुड्स शिवी ने या निहाल ने शिवी को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, तो शिवी अपने इनवॉइस पे दोनों एड्रेस लिखे, एक निहाल का एड्रेस और दूसरा जहां पर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है उसका एड्रेस. एड्रेस ऑफ डिलीवरी. इफ tax is payable on reverse charge basis, if it is payable on reverse charge basis, you need to specify yes it is payable on reverse charge basis. Last, the invoice has to be a signed invoice, because unsigned invoice की genuineness, unsigned invoice की validity पर बड़ा क्वेश्चन है. Provided that the board on recommendations of the council, they had come up with a say relaxation के आप एक काम कीजिए, आपका अगर टर्नओवर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक है तो आप HSN मत लिखिए, अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड करता है तो ही आपको HSN की रिक्वायरमेंट है. बट from 1/4/2021, I believe now everybody is required to write up the number of HSNs on their invoice. However, since this is a part of your study material, I am taking it, but I believe that this is already outdated. पहले, that is before 1/4/2021 क्या होता था, अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ रुपए तक था तो बोलते थे HSN की रिक्वायरमेंट नहीं है, मत लिखो, आप छोटे आदमी. 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक था तो बोलते थे दो डिजिट लिखो, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा होता था तो कहते थे 4 डिजिट लिखो. However, the class of registered person, अच्छा ये ठीक है, ये नोटिफिकेशन से द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई ये पावर रखा हुआ है. नेक्स्ट, provided further where an invoice is required to be issued under 31(3)(f, ये अपन नीचे पढ़ेंगे कि जब आपको RCM में टैक्स पे करना होता है, RCM में, तो the law expects you to issue a self invoice. सामने वाला, that is the supplier, will just mention down in his invoice or in her invoice that whether the supply is liable to reverse charge, the person will say yes. So once you receive such a document, you will have to issue up a self invoice and then discharge your liability accordingly. Provided also that in case of export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement. What is that endorsement? That the supply is meant for export, or the supply is to an SEZ unit or developer for use in SEZ operations, either with payment of tax or without payment of tax.
whenever you do exports, supplies to SEZ, they say that we give you an option. The option is something like this: either make a supply and pay tax, or make a supply under LUT. LUT होता है आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. Now what is that LUT specifying? It says that I agree and I accept that I will get up the export proceeds within a certain specified time period. I agree that all the conditions related to a community or a thing called as export is being satisfied by me. And if I am unable to satisfy any of the conditions, I shall indemnify the government of India that I will pay up the liability along with the interest. So आपको वो बोल रहे हैं कि so that your working capital does not get stuck, so that you are at ease कि चलो मेरा खाली वैल्यू ऑफ गुड्स है वही अटका है, बट मेरा वर्किंग कैपिटल इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस नहीं अटका. Hence, this year कि आपको एक ऑप्शन दिया है हमने, प्लीज मेक अप द पेमेंट अंडर LUT. However, if you are opting for it, you will have to give certain details to us. और आपको क्या क्या और डिटेल देनी पड़ेगी कि जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट है उसका डिटेल्स, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और नेम एंड डेस्टिनेशन और नेम एंड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के फाइनली आपका गुड्स कहां पर जाने वाला है. नेक्स्ट, provided also that where a registered person other than a person in multiplex cinemas, मतलब it is applicable to all except जो multiplexes या multiplex या जो theater चला रहा है multiplex screens, he may not issue a tax invoice as per the above provisions, subject to the following conditions. First, the person, rather the recipient is an unregistered person, and second, the person does not requires an invoice. मतलब से for example मैं जाता हूँ थिएटर में, आई से मेरे को दो अभी कौन सी कोई भी जो रिलीज हुई होगी फिल्म उसके टिकट्स दे दो, तो आई एम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, आई एम नॉट वरीड अबाउट द इनवॉइस. मैं बोलता हूँ खाली मेरे को एंट्रेंस टिकट दे दो, मेरे को जाके पिक्चर देखने. So when I say this, my supply, that is the supply of the multiplex, remains taxable. Shanit, I'll give you another example. Though the example will stand true in both the cases, but then again, that is not what is written in the law. Say for example, you come to me for an lecture or for an advisory. You are an unregistered person. I charge you a minimum amount. You tell Nihal, I do not want an invoice. Okay. When you say that you do not want an invoice, does my supply become non-GST supply or non-taxable supply? The government says no. आपके रेसिपिएंट ने खाली ये कहा है कि उसे इनवॉइस नहीं चाहिए, बस वही बात. तो आपको काम करना है, आपको at the close of each day, I repeat, at the close of each day, आपको एक इनवॉइस पास करनी पड़ेगी फॉर द कंसोलिडेटेड अमाउंट. मतलब
से कोई आता है मेरे पास में 500 500 500 500 1000 1500 1500 1000 2000 5000 7000 10000 20000 सारा का सारा मैं टोटल टोटल करूंगा और लास्ट में आकर एक इनवॉइस इशू। नेक्स्ट, हाँ अभी जो मैंने बोला ना 500 500 500 700 1000 2000 15000, अब इस पे एक और लिमिट आएगी। हाउएवर वो लिमिट अभी तक आई नहीं है, जब आएगी तब चेक करते कितने की ये लिमिट है। प्रोवाइडेड दैट डीएससी भी चलेगा। और अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग हो रही है, दैट इज इफ यू आर अ कैटेगरी ऑफ पर्सन टू हुम ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, अगर उस पे आपका डीएससी अटैच नहीं है या इफ इट इज एन अनसाइंड इनवॉइस, इट इज स्टिल provided further. The government may, on the recommendations of the council and subject to conditions specified, that the bill of supply shall have a QR code. ठीक है, ये सारे के सारे ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग किसको एप्लीकेबल होती है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 500 करोड़ रुपीस, मतलब 5 करोड़ रुपीस, 500 करोड़, इसको और रिड्यूस करके 100 करोड़ किया था, फिर इसको रिड्यूस करके अभी मेरे ख्याल से 50 करोड़ की लिमिट चल रही, टू द एक्सटेंट माय मेमोरी गोस। बेटा ये 500 करोड़ नीचे आ चुका है, दैट इज फॉर श्योर। सजेस्टेड एग्जांपल ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, ये कुछ नहीं, टैली का एग्जांपल है। टैली में से भी अगर आप इनवॉइसिंग करते हो, उठाते हो, तो यू गेट मोर और लेस दी सेम डिटेल्स। टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, आई बिलीव अपन ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं जब अपन ने अपना टाइम ऑफ सप्लाई देखा था। टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑलरेडी कवर्ड। रूल 47 ऑलरेडी कवर्ड। ये क्या था? 30 डेज या 45 डेज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस ऑलरेडी कवर्ड। बैंकिंग, टेलीकॉम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सक्सेसिव स्टेटमेंट्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स भी देख लिया था। यहाँ पर क्या होता था, या तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आ रहा था, या तो फिर आपकी टैक्स इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर आ रही। दो पॉइंट ये बाकी था, सिर्फ एक ही पॉइंट। 716 see what happened. 01/01/2020 शिवी contacted निहाल। निहाल को बोले, निहाल मेरे को जीएसटी का लेक्चर्स दो, मैं तुमको 10,000 प्लस 18% 11,800 पे करती हूँ। निहाल इज लाइक दैट। After that, what happened was the lecture started. Somewhere or the other, so Shivi did not like it. Shivi did not like it. Shivi is like, Nihal, you have taught me half the syllabus. 5,000 प्लस 18% रख ले, और जो भी रिमाइंडर अमाउंट है प्लीज रिटर्न इट टू मी, आई डू नॉट वांट योर सर्विसेज एनी। ठीक है, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी के साथ, ले लो वापस पैसा।
अब यहां पर क्या होए, सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन सीज हो गई, तो Niyal will have to issue a invoice of 5,000 plus 18%. That is 5,900 only. I hope it is clear. Example था, don't get serious about it in real. Yes, sir. अरे just kidding around. Manner of issue of invoice. एक इनवॉइस बनाओ, एक कॉपी बनाओ, 2 कॉपी बनाओ, 3 कॉपी बनाओ, वो बोलते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने टाइप का ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो। अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होने वाला है तो आपको 3 कॉपी बनानी पड़ेगी, 1 फॉर द रेसिपिएंट, 1 फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड 1 फॉर द सर्विस का केस आता है, सर्विस के केस में ट्रांसपोर्टर नहीं होता, सो 2 कहाँ डिस्क्लोजर होगा, सारा जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोजर होगा। अब they are talking about e-invoice. Let us understand a bit of e-invoicing as well. It says that the government has inserted rule 48,456. They say that a certain category of taxpayers are required to issue an e-invoice. इसमें करना क्या होता है? For all simple purpose. आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाना है, वहां पर डिटेल अपलोड करनी है और फिर वहां से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर निकाल के लाना। कैसे समझते? It says rule 48.4 that the invoice prepared by the registered person, by such class of registered person, on the recommendations of council, by including such particulars in form GST INV 01, after obtaining an invoice reference number by uploading the said information contained on the portal subject to certain conditions. मतलब आपको पहले इनवॉइस सिस्टम में बनानी, सिस्टम में बनाने के बाद में पोर्टल पर अपलोड करनी, पोर्टल से एक IRN every invoice. Issued by such person. To whom? Section 4, sub rule 4 applies in any manner other than the manner specified shall not be treated as an invoice. So वो बोलता है अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल था और अगर आपने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट इशू किया है दैट वी शैल नॉट ट्रीट इट एज एन इनवॉइस ओनली। 6 जो ऊपर के अपन ने रूल्स देखे वो बोलता है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इफ यू आर a category of taxpayer जिसको e-invoicing applicable होता है। So in and all what they are trying to tell you is अगर e-invoicing applicable है तो आपको electronic invoicing ही करनी है for it to be a valid invoice। अगर आपने कोई भी दूसरी टाइप की invoicing तो we shall not treat it as a valid invoice। देखो मैं आपको ऊपर बोला था कि इसका अमाउंट चेंज हो गया है, so it is 100 करोड़ रुपीस बाद में आ रहा है। ये सारी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर इनवॉइस बना सकते हो अपनी। वो बोलते हैं कि अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप वॉलंटरी भी इनवॉइसिंग कर सकते हो, बट फिलहाल तो प्रोविजन से एप्लीकेबल है, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ डूइंग अ वॉलंटरी इनवॉइसिंग। टैक्स इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, अंडरस्टैंड आरसीएम के केस में एप्लीकेबल होने वाला है। उसमें क्या क्या आइटम होएगा, लेट अस सी।
Section 31(3)(f) provides that a registered person is liable to pay under 939 for अपन already check कर चुके, it deals with RCM, recipient ही invoice generate करेगा. Special dispensations, that a registered person may within a period of 1 month from the due date of certificate of registration. चलो अब मैं आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के टॉपिक से इसका लिंकेज देता हूं. आपको मालूम है कि जब आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का केस हो तो आपको कितने टाइम पीरियड का बफर मिलता था कि आप अगर आज लायबल हुए हो तो आपको इतने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े. 30 डेज. 30 डेज पे अगर आप अप्लाई कर देते हो और वो नंबर आपका इफेक्टिव होता है फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, तो फिर आप जो 30 दिन का गैप आया है उसमें बिजनेस तो कंटिन्यू करने वाले हो. However, you still cannot go ahead and charge GST. क्यों? क्योंकि नंबर नहीं है आपके पास. And therefore, what they say is कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक तो do one thing, you issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning from effective date of registration till the date of issuance of certificate. So now यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप पहले तो आपने जो नॉर्मल कोर्स में इनवॉइसिंग थी वो कर देना, उसके बाद में वही इनवॉइस को रिवाइज कर देना. रिवीजन का इंपैक्ट क्या होएगा कि जब आपने नॉर्मल इनवॉइसिंग की तब तो आपने जीएसटी चार्ज किया नहीं, अब रिवाइज्ड इनवॉइस में आप जीएसटी चार्ज कर. This will be the impact of your revision. B. A registered person may not issue a tax if the value of goods or services or both is less than 200 rupees. अब अगर आपको याद है मैंने आपको बोला था कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करनी है 500, 500, 700, 1000, 1500, 2000 रुपए के लिए. ऐसा नहीं होएगा. आपकी कंसोलिडेटेड इनवॉइस कब इशू होएगी? जब आपका रजिस्टर्ड पर्सन आप हो और आपका जो रेसिपिएंट है उसको जो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई करने वाले that would be less than 200 rupees. Only at that point of time आप एक रजिस्टर्ड या rather एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर पाओ. I hope you are clear. Any confusion? No, sir. बिल ऑफ सप्लाई. अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन आप कंपोजिट सप्लाई में टैक्स करें, या अगर आपकी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड है, तो इन दैट केस आप टैक्स इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकते, लेकिन आपको फिर भी एक
ऐसा डॉक्यूमेंट तो इशू करना ही पड़ेगा जिससे सामने वाला ये बोल सके कि यस मैंने आपको सप्लाई की है या आपने मुझसे सप्लाई ली है, या यस मैं सप्लायर हूं और आप रिसिपिएंट। वो केस में वो बोलते हैं कि हम उसको टैक्स इनवॉइस नहीं बुलाएंगे, हम उसको बिल ऑफ सप्लाई। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। वाजिब सी बात है, 200 रुपए तक अगर आपकी सप्लाई हो रही है तो आपको बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द पर्टिकुलर्स मोर और लेस आर सेम। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? शिवी ने निहाल को बोला, निहाल टेक मी थ्रू द एंटायर जीएसटी लॉ, रन मी थ्रू द एंटायर जीएसटी लॉ। I said fine, I'll pay you in advance. Like fine. शिवी ने निहाल को पैसे ट्रांसफर। अब निहाल को उसको एक इनवॉइस तो देनी पड़ेगी साथ में, पैसा एडवांस में बिकॉज रिसीव हुआ है तो मुझे एक इनवॉइस, सॉरी निहाल फिलहाल के लिए उसको इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि सप्लाई नहीं गई है, लेकिन पैसा रिसीव हो गया है तो शिवी को एक डॉक्यूमेंट देने के लिए, यस मेरे को पैसा रिसीव हो गया, मैं आपको एक रिसिप्ट वाउचर इशू कर रहा हूं दैट यस आई हैव रिसीव्ड दिस सेड मनी फ्रॉम शिवी। जो भी प्रिस्क्राइब क्राइटेरियाज है उसमें मोर और लेस दे आर सेम एज दैट वाज ऑफ टैक्स, मोर और लेस सेम। अब क्या हुआ, जो रिसिप्ट आया था ना वो वापस देना पड़ेगा, तो मेरे को एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर क्या होता है? अगर कोई सप्लाई मेरे सेक्शन 9(3) दैट इज आरसीएम या सेक्शन 9(4) दैट इज अगेन आरसीएम में अगर होती है तो उसमें द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड व्हेन द recipient is liable to pay tax to the government, the government says आप एक पेमेंट वाउचर इशू करो। मतलब जो भी पर्सन लायबल टू पे टैक्स उस पे एक ओनस डाला है, उस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप पहले ये वाउचर इशू करो कि मैंने पैसा भर दिया है, और फिर नीचे उतर के आप एक सेल्फ इनवॉइसिंग, टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर और वेरी सिंपल। निहाल ऐसी भी सप्लाई कर रहा है जिसपे टैक्स लगता है, निहाल ऐसी भी सप्लाई करता है जिसपे टैक्स नहीं लगता। अगर ये प्रोविजन ना हो तो निहाल को दो दो चीजें इशू करनी पड़ती, एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी बिल ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट ने बोला काम कर, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में तू पास ऑन। रिवाइज टैक्स इनवॉइस अपन ऑलरेडी देख चुके कब से कब तक भी इशू। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, लेट अस अंडरस्टैंड कि एक डेबिट नोट का मीनिंग क्या होता है और एक क्रेडिट नोट का मीनिंग क्या होता है। If I have to ask you, what do you mean by the term debit note, or rather what do you mean by the term credit note? आंसर क्या आएगा? निहाल, credit note is a document that I issue when I have to waive off something. मतलब से मुझे उससे 1000 रुपया लेना था, अब मुझे उससे सिर्फ 900 रुपया लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का उसको एक ऐसा नोट दे दूंगा जिसपे आई एम सर्टिफाइंग दैट यस आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट, और अदर आई हैव से लेट द 100 रुपीज गो।
सो दैट इज अ क्रेडिट नोट. अब डेबिट नोट में क्या होएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका रिवर्स होगा. सो लेट अस रीड what my section 34 that deals with debit note and credit note has to offer. It says that where a tax invoice has been issued for supply of any goods and services and the taxable value, please understand this thing, taxable value for tax actually charged, and this is what had to be charged. मतलब ये रियलिटी है और ये आइडियल सिनेरियो. ओके, is found to be in excess, मतलब this is here of what should have been charged. मतलब 1000 रुपया चार्ज करना चाहिए था, सॉरी 800 रुपया चार्ज करना चाहिए था, आपने 1000 चार्ज कर दिया, तो 200 का आप उसको एक क्रेडिट नोट. सेकेंड सिनेरियो, उसको गुड्स या सर्विस पसंद नहीं आई, उसने गुड्स या सर्विस रिटर्न कर दी, वापस दे दिया, क्रेडिट नोट इशू. थर्ड सिनेरियो, उसको सर्विस डेफिशिएंट लगी या उसको गुड्स डेफिशिएंट लगी. से उसने बोला था मेरे को 1 mm का पाइप चाहिए या 1 mm साइज का जो लेंथ है उतने का ही मेरे को पाइप चाहिए. आप 1.5 का पकड़ा दिया. वो बोलता है ना, आई डोंट हैव एनी यूटिलिटी फॉर दिस एंड द रेट ऑफ 1.5 इज से, और रादर मुझे 1.5 का चाहिए ही नहीं. आप उसको फिर भी हाथाजोड़ी करते हो, आप बोलते हो नहीं यार सर रख लो, या आपने दूसरी क्वालिटी का माल भेज दिया और आप ये बोलते हो कि सर क्वालिटी तो फर्क है. सो ही इज लाइक मेरे को सेम क्वालिटी चाहिए था, सो आपका सर्विस या गुड्स डेफिशिएंट, नॉट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वालिटी, एंड देयरफॉर मैं आपका पैसा काटूंगा. तो वो जो पैसा काटेगा ना, उसके बदले में भी आपको एक क्रेडिट नोट इशू करना. आई होप क्रेडिट नोट कब इशू होता है क्लियर. अगर क्रेडिट नोट क्लियर है तो डेबिट नोट इशू कब होएगा, निकाल इसकी सिचुएशन अपोजिट करते हैं. When the situation is reverse, आपका डेबिट नोट इशू. I hope credit note as well as debit note is all clear. Yes. Next. हो गया, रिवाइज्ड इनवॉइस का हो गया. अब एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 2,50,000. तो वो लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू. यू आर लाइक मेरी बहुत सारी छोटी 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 सप्लाईज, एंड देयरफॉर आप बोलो एक एक इनवॉइस रिवाइज करो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल.
इंडियन ऑप्शन के मैं एक इनवॉइस में सारा का सारा रिवीजन कर सकता हूं। So they have also given you that option. अब आपके रिवाइज्ड इनवॉइस पे क्या क्या प्रिस्क्राइब होने चाहिए, मोर और लेस सेम लाइक दैट ऑफ टैक्स इनवॉइस। अच्छा, टैक्स इनवॉइसिंग, इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, sir. टैक्स इनवॉइसिंग इन स्पेशल केसेस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आईएसडी भी एक डॉक्यूमेंट इशू करने वाला है। कंडीशंस, आइटम्स प्रिस्क्राइब, the details asked for, the details called for, more or less, I repeat, more or less similar, same as that in tax invoice. अब अगर आप एक आईएसडी हो बट उसके साथ साथ में आप एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या एक बैंक या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के आप आईएसडी हो, तो क्या बोलते हैं? Shall include any document in lieu of by whatever name called, whether or not serial number content but contain the information as mentioned above. वो क्या बोलता है? अगर आप एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एनबीएफसी के आईएसडी हो, तो वेदर आपका नंबर सीरियली इन्वॉइस्ड है कि नहीं है डज नॉट मैटर, अगर ये सारी प्रिस्क्राइब डिटेल्स है ना, चल जाए। फिर अच्छा, वन है registered person having the same pen and the state code as an ISD may issue an invoice or as the case number credit note or debit note. अब ISD का काम क्या है? टू ट्रांसफर क्रेडिट, मतलब आप क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स इशू कर दो, सारे के सारे जो डिटेल्स है वो प्रिस्क्राइब्ड रहेंगे। अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी हो तो आपको बोला आप एक मंथ एंड कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर सर्विसेज मेड ड्यूरिंग द मंथ। व्हाट इट मींस है, से फॉर एग्जांपल आप एक करंट अकाउंट होल्डर हो, आपने बार बार आईएमपीएस किया ड्यूरिंग द मंथ। IMPS का what banks do is they charge you 5 rupees plus GST for every transaction that you do. When you go ahead and do up every transaction, when they charge you 5 rupees, वो बोलते हैं कि आप मंथ एंड पे, आप मंथ एंड पे एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दें। एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देना कि मैंने तेरे को पूरा महीने में इतना चार्ज किया। ई योर अदर थर्ड जो जीटीए है, where the supplier of a service, taxable service is a GTA in relation to transportation of goods, वो बोलते हैं कि आपको आपने इनवॉइसिंग पे वेट क्या था कंसाइनमेंट का, कंसाइनर का नेम क्या था, कंसाइनी का नेम क्या था, कौन सी गाड़ी में गुड्स गया था, आपको वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। दैट इज ऑब्वियस। आपने कभी बस से ट्रैवल किया है? अगर आप कभी एसी बस से ट्रैवल करोगे, एयर कंडीशन बस,
जीएसटी तो लगता है उस पे, क्योंकि अपन ने एग्जेम्पशन में पढ़ लिया कि इफ इट इज एन एयर कंडीशन कैरियज आपको जीएसटी तो लगने वाला। तो जब आपको एसी बस में ट्रैवल करने पे जीएसटी लगता है तो आई एम श्योर कंडक्टर कभी ये नहीं पूछता है एड्रेस क्या है, कंडक्टर खाली एक ही चीज पूछता है किधर उतरने का है, किधर से चढ़े थे, कहाँ उतरना और कहाँ से आप चढ़े थे। दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे से कि आप अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हो तो आप खाली रेसिपिएंट का अगर एड्रेस नहीं भी लेते हो हमको चलेगा, लेकिन जो बाकी चीजें वो प्लीज हमको दे दें। सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस में अगर आप हो, वो जो आपको टिकट मिलता है ना, दैट इज एज गुड एज एन इनवॉइस। नाउ आई हैव नॉट रिविजिटेड any cinema house recently, therefore I don't have the ticket to show it, वरना मैं उस पर लिखा, जब मैंने लास्ट विजिट किया था आफ्टर जीएसटी, वहां पर नीचे लिख के आता था कि दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज चार्ज्ड ऑन, बट recently I have not visited after COVID especially, so then I do not know as to what is the practice that is being followed right now, but I am sure अभी भी लिख के देते ही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन चालान इन लिeu ऑफ एन इनवॉइस। बहुत सी बार क्या होता है कि अपन कुछ ऐसा सप्लाई करते हैं, नहीं रुको रुको, जॉब वर्क रिलेटेड प्रोविजंस मैंने कवर किए है, तो जब आप जॉब वर्क रिलेटेड प्रोविजंस कवर किए थे अपन ने, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड अंडरस्टूड कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो चालान के थ्रू होगा, क्योंकि एट द स्टेज 1 दैट इज एट द इनिशियल स्टेज ऑफ व्हेन द गुड्स मूव आउट, आपके गुड्स सप्लाई माने ही नहीं जा रहे। हाँ, 1 साल 3 साल में अगर नहीं रिटर्न आते तब वो जाके सप्लाई मानेंगे। क्लासिक एग्जांपल, अच्छा इधर भी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ रीजन अदर देन सप्लाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो ज्वेलरी सेक्टर में। ज्वेलरी सेक्टर में क्या होता है, आप विजिट करते हो, आप मल्टीपल लोगों को अपना ज्वेलरी दिखाते हो, some of them like it, some of them don't like it, some of them order and some of them don't order as well. So when some of them like it and some of them place up their order, at that point of time you are not expected, or rather as a jeweler the government cannot say के निहाल जशीवी माल लेकर अगर जा रहे हो आप एक इनवॉइस लेके जाओ। क्यों? आप बोलोगे पहली बात सप्लाई हो नहीं रही, सेकेंड बात मैं खाली वहां पर उसको दिखाने जा रहा हूं, तो मैं इनवॉइस कैसे बनाऊं, तीसरी बात जॉब वर्क के लिए भी नहीं जा रहा गुड्स, तो ये तो रेडी प्रोडक्ट है जो लेके जा रहा हूं। एंड देयरफॉर वो बोलते कि अभी बिकॉज आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एक से लिमिट एक्सीड करता है, आपको एक चालान तो फाड़ना पड़ेगा जिससे आप ये प्रूफ कर रहे हो कि यस माय गुड्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब क्या क्या डिटेल्स है ऑन चालान, ठीक है, स्पेसिफाइड इन रूल 38, वो ई वे बिल रिलेटेड रूल है, अगर आएगा नीचे तो अभी पढ़ लेंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अकम्पनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट इज वेरी ऑब्वियस। अगर आपका गुड्स जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ एंट्री उसके साथ में रखनी पड़ेगी। Here we finish up the topic of tax invoice, credit notes and debit notes. I hope it is clear to you. Yes, sir. Yes.
Now, let us start up with a topic which is considered to be the most boring, the driest topic of them all. In fact, this topic is a lot and lot towards documentation. मतलब अगर आप ये दो टॉपिक अच्छे से समझ जाते हो ना, तो एटलीस्ट आपका जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं हाथ नहीं अटके. लेकिन बोरिंग है, अग्रीड बोरिंग है. क्यों? क्योंकि आपको क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, वो सबकी एक लिस्ट आने वाली. आपको ये डॉक्यूमेंट कब बनाना है, आपको डॉक्यूमेंट क्यों बनाना है, आपको डॉक्यूमेंट कब नहीं बनाना होता है, सबकी लिस्ट है. बट अगर आप अपना सेक्शन 16 देखते हो, तो वहां पर एक कंडीशन है that you should be having a duty paying document that can be called as tax invoice, ISD invoice, whatever it is, but the basic crux is कि आपके पास एक ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए. एंड जब आप एक के पास एक ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपको ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है वो भी समझना पड़ेगा. एज अ प्रोफेशनल आई कैन से दिस वेरी ऑनेस्टली. आई बिलीव मैंने आज से 2 साल पहले भी ये स्टेटमेंट बोला था. A lot of professionals they don't like to refer to the sections, because I'll tell you there is no application of mind and it is pure information that is flowing. लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, तो you need to understand that no matter what topic it is, what subject it is, what law it is, some part of the law you would understand because it will force you to think, and some part of law you will have to understand because you need to create a base that forces you to think upon. ये टॉपिक वैसा ही है. It is a big topic. Can't help. Let us enjoy it. Accounts and reports. Section 35 and 36 सिर्फ 2 ही सेक्शन है, लेकिन रूल्स है. रूल्स भी 2 ही रूल्स है, 56, 57, 58. सॉरी 3 रूल्स हो गए. ज्यादा टेंशन नहीं लेने का टॉपिक में, इजी है. And therefore we shall now start. पहला टॉपिक, कहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए. They say that maintenance of records is principle. Every registered person shall maintain and keep at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration. What they are asking you to is to keep a true and correct record, not a true and fair record. What do you mean by true and correct? is आपकी arithmetical calculations भी match होनी चाहिए. You need to be arithmetically correct, and that is what they are telling you कि आपको say true and correct record of, चलो of एक example let's say production of goods or services. अब यहाँ पर क्या होएगा, से आपका 1 unit is equal to 1 unit is equal to 1 output. ठीक है, आप अगर 1 यूनिट डालोगे तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन होएगा. आपने अपना गुड्स चेक किया, जैसे आपने 100 यूनिट्स का इनपुट किया, बट देयर इज ओनली 98 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. 2 यूनिट्स कहां पर गए इज द क्वेश्चन. But 2 units can be a case of damage, or it can be a case of fraud or an anomaly.
If it is damage, it is fine. You can have an application के भाई damage हुआ है. But if it is fraud, then there is another set of issue that we face. But however, the point is not what is the issue we face if it's a fraud. The point is आपके पास में 100 is equal to 100 का एक justified explanation होना चाहिए. I hope I am clear as to what do you mean by the term true and correct. Yes, sir. Second, inward and outward supply of goods very true होना चाहिए. The stock of goods ये भी होना चाहिए. Input tax credit availed, output tax payable and paid, and such other systems as may be prescribed. But if you understand a bit of accounting, a bit of softwares, you will say Nihal ये सारी चीजें यार सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा अगर अकाउंटिंग ढंग से की तो, and that is what my thesis is. आपको as such अलग से कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने की नीड नहीं है. If the software is say a decent software, सारा का सारा मेंटेन. More than one place of business. Where there are more than one place of business, specific details की specific information वो लोकेशन पर मिलनी चाहिए. निहाल मतलब I am a person sitting in भाईंदर. मैं भाईंदर में बैठा हूँ अपना आराम से. मेरा एक यूनिट है भाईंदर में, एक यूनिट है बैंड्रा में. अब जो भाईंदर लोकेशन है, से भाईंदर लोकेशन का जो भी तेरा इनपुट है, आउटपुट है, मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा मेरे को भाईंदर में मिलना ही चाहिए. सिमिलरली बैंड्रा का बैंड्रा में मिलना चाहिए. आई होप आई एम क्लियर. Yes, sir. रूल सारे के सारे अभी है क्या? चलो रूल साथ में ले लो. Rule 56 elaborates. Rule 56 से और सेक्शन elaborate करता है कि क्या-क्या आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंट्स होते हैं. वो बोलता है कि ट्रू एंड करेक्ट भी होना चाहिए. आपका इंपोर्ट का भी चाहिए, एक्सपोर्ट का भी चाहिए, आरसीएम के भी चाहिए, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, इनवॉइसेस भी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब आपके पास में सारी की सारी चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर तो आपको इनवर्ड सप्लाईज पे भी काफी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है. जैसे ओपनिंग बैलेंस कितना था, थ्रू आउट द मंथ रिसीव कितना हुआ, उसमें से सप्लाई कितना हुआ, चोरी कितना हुआ, डिस्ट्रॉय कितना हुआ, आपने राइट ऑफ कितना किया है, सो ऑन एंड सो. क्यों? बिकॉज ये सारा का डिटेल्स will determine whether कोई blocking of credit is getting attracted or not getting attracted. You need to maintain separate account for advances received, paid and adjustments thereof. Very obvious. RCM की डिटेल्स आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, सारे के सारे आपको एक फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी. Fifth, every registered person shall keep the details of your recipient as well as your suppliers. So आप जिससे माल खरीद रहे हो उसका सारा डिटेल मेंटेन करो, साथ ही साथ आप जिसको माल बेच रहे हो उसकी भी सारी की सारी डिटेल्स आप मेंटेन कीजिए. आगे चलिए. If any taxable goods are found to be stored at any place other than those declared, the officer shall determine the amount of tax payable on such goods as if they have been supplied from by the registered persons. Now please note, this rule
or rather this sub rule, say it gives you a very, बोलते ना, it gives the officers a very open hand. वो क्या बोलते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपका एक गोडाउन था वसई, आपका एक और गोडाउन है से भिवंडी, वसई का तो गोडाउन पे आपने डिक्लेयर करके रखा है इन योर सर्टिफिकेट, बट भिवंडी का गोडाउन आपने डिक्लेयर नहीं करके रखा है, बिकॉज वो गोडाउन कैसा है, आपको से एक छोटा सा स्क्वायर, एक छोटा सा रूम दे दिया, वहां पर आपने अपना गुड्स मेंटेन करके रखा है, साथ ही में देयर इज नो रेंट एग्रीमेंट इन प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है इवन वो आपके जो जिससे आपने जगह खरीदा है उसके नाम पर भी नहीं आता, वो किसी और ही नाम पे, so फॉर एग्जांपल एक काइंड ऑफ सबलीज है या सब रेंटिंग हुई या सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, practically not possible to maintain such, or rather practically not possible to insert such device, such data in your system or such details in your certificate. तो ये लोग क्या बोलते हैं, पावर रहे कि काम करो, जो भी आपका माल भिवंडी में मिला ना वो सब हम ये मान लेंगे कि आपने सप्लाई कर दी. No, this is not correct. Understanding the practicality of the situation. Now, when I say by understanding the practicality of the situation, I in no way mean to say कि आप अपना जो registered place के अलावा जो सारे additional places है वो declare मत कीजिए. See, if it is possible to declare, declare. If you are having proper documentations and everything, either try to get them, or if it is not practically feasible, then you'll have to fight for it. But the best suggestion is always declare. 7. Every registered person shall keep books of accounts at the principal place of business and books relating to additional place of business in a certificate and such. देखो ये क्या बोल रहा है, आपको अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा. Yes. All entries in the register shall not be erased, effaced or overwritten, and if they are incorrect, otherwise those of clerical in nature shall be scored out under attestation. So what they are saying here is delete नहीं मारने का, always pass up a rectification entry. That is what the law says. क्लेरिकल एरर है जाके सुधार दो, बट अगर से क्वांटिटी डालने में एरर हुआ है, से यूनिट्स डालने में एरर हुआ है, से प्राइस डालने में एरर हुआ है, तो दे से एक अप्रूवल. So here they are expecting a system to be maintained in a manner जहां पर ये सारा चीज practically feasible हो. Again, that is what the law is. I don't want to comment much on the practical implication of it. Each volume of books of accounts maintained manually shall be serially numbered. अगर आप manual accounting maintain कर रहे हो तो आपकी चीजें serially numbered होनी चाहिए. Unless provided otherwise. If any documents or registers or any books belonging to a registered person are found to be in premises other than those mentioned in the certificate, they shall be presumed to be maintained by such registered person. आपने प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं की और वहां पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली, so that they are presumed to be yours and not of anybody else. फिर फाइट करना पड़ता है और कुछ नहीं. एवरी एजेंट, अब एजेंसी का आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिहाफ पे आप अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे या तो गुड्स रिसीव करोगे या तो गुड्स सेल करोगे, दोनों में से एक ही चीज होगी. वो बोलते हैं डिटेल मेंटेन करो बस. और अगर आपके मल्टीपल प्रिंसिपल्स है तो मल्टीपल प्रिंसिपल्स की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, rather प्रिंसिपल वाइज डिटेल्स मेंटेन करनी. 12. Every registered person
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स शैल मेंटेन मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, और बिलीव ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। 30 every registered person supplying services shall maintain the account showing quantitative details of goods used in provision of service. Say for example, I am providing you a service. Say for example, मैंने एक बुक आपको भेजी, वो बोलते कि निहाल जो तूने बुक भेजी ना, जो बुक भेजी गई है, वो बुक की भी तेरे को डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय यू टू प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपने किसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट किया, सर्विस कितनी रिसीव की, सर्विस कितनी यूटिलाइज की, पेमेंट कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, आपके सप्लायर्स के क्या क्या नाम थे। इट इज ओके इफ यू मेंटेन देम इलेक्ट्रॉनिकली, and it is okay if you put up a digital signature in place of a real signature. 16. Accounts maintained by a registered person together with all the invoices, bill of supply, etc. has to be preserved. मतलब अब ये बोल रहा है कि आपको कितने साल तक के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, या कितने साल तक के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, has to be preserved. Has to be preserved for a period as specified in provision in section 36. अगर आज आया तो आज देखेंगे, नहीं तो कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड such records are kept manually, be kept at every related place of business mentioned in this certificate, and it should be accessible. That is what it is. आपका प्रोडक्ट भाईंदर से रिलेटेड है, भाईंदर में मिलना चाहिए, और भाईंदर में ऐसा नहीं कि आपने अलमारी में लॉक वगैरह सब कुछ लगा के रख दिया है, नहीं, इट शुड बी एक्सेसिबल टू पीपल ऑफ भाईंदर एटलीस्ट, या अगर कोई ऑफिशियल भाईंदर वाला है, या अगर आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आके पूछता है मेरे को रिकॉर्ड्स बताओ, तो उसको मिलना चाहिए। Any person having custody over the goods in capacity of a carrier or clearing and forwarding agent shall maintain true and correct records in respect of goods that are handed over to him and those have been cleared. Every registered person on demand produce the books of accounts which is required to maintain under any law for time being in force. Say for example, जब आप रियल लाइफ में कोई भी से इनडायरेक्ट टैक्स की प्रोसीडिंग्स हैंडल करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वो लोग आपसे सबसे पहले दो चीज मांगते, पहला आपका ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा आपका टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट। सो वही लोग ये बोलते हैं कि अगर उसने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दैट इज फॉर्म 3CA 3CD या फॉर्म 3CB 3CD मांगा, तो आपको वो भी डिटेल्स उससे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ। जीएसटी एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट की है, तो मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर मांगी है तो देनी भी पड़ेगी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म इज आल्सो परमिटेड। बोलते हैं प्रॉपर बैकअप लेने का, ठीक है, अगर आपने मांगा डिटेल्स तो हमको डिटेल्स देने का, सारी नॉर्मल चीजें ही है। दैट से यू नो ऑल ऑफ अस आर एनीवेज मेंटेनिंग। अब से आपका गोडाउन है, आप गोडाउन हाउस कीपर हो, तो व्हाट दे टेल यू इज owner or operator of a warehouse or a godown or any other place where the goods are used for storage, whether he is registered or he is unregistered, you are still required to maintain consignor ka details, consignee ka details, and all the relevant details of the goods which are getting transferred.
गोडाउन वेयर हाउस कीपर को ये सारा डिटेल्स मेंटेन करना इज कंपल्सरी। अब इट इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो देखिए खत्म कर ही देते हैं। अब याद रखना वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इट applies to owner or operator of a godown or a warehouse and the transporters. So every person required to maintain records, it is ये वाला अपना godown warehousing वाला, if not registered under these act. So if you are an unregistered godown owner, they shall submit the details electronically in form GST ENR 1. A unique enrollment number shall be generated and communicated. So what they are trying to tell you is, अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वेल एंड गुड ले लो, अगर नहीं है तो ENR 01 से आप अपने आप को एनरोल कर दो दैट यस आई एम एन ओनर ऑपरेटर ऑफ अ गोडाउन एंड हम आपको एक एनरोलमेंट का नंबर इशू कर देंगे। A transporter is registered in more than one state having same PAN. He may issue for a unique enrollment number by submitting ENR 02 by using any of his GST. And upon validation thereof, a unique common enrollment number shall be generated. So which means आपका अगर 36 राज्यों में काम है तो आपको 36 ENR 1 जनरेट नहीं करना है। वो बोलते हैं आप कोई भी एक नंबर से एप्लीकेशन करो, हम आपको एक यूनिक ENR दे देंगे, दैट इज आपका एनरोलमेंट नंबर दे देंगे। Provided that where the transporter has obtained a unique enrollment number, he shall not be eligible to use that any of the GSTIN for the purpose of this chapter. So what they are trying to tell you is, आपके पास में ENR नंबर आया ना, तो आप एक काम करो, अब आपका सारा चीजें ना ENR से इशू काम करो, आप अब GSTIN यूज मत करो। दिस इज आल्सो फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ आसान किया गया है बाय दिस फैसिलिटी। वो बोलते नहीं तो आपको 36 राज्यों का GSTIN इशू करना पड़ता, इनवॉइस करना पड़ता। अभी क्या हो रहा है, आपको सिर्फ एक कॉमन नंबर आपके इनवॉइस पे मेंशन करना। A person enrolled under sub rule 1 shall be deemed to be enrolled in the state or territory of West Bengal. अगर मैंने महाराष्ट्र का ENR 1 लिया है तो I am deemed to be a person of Maharashtra only. I cannot be deemed to be a person of Karnataka. 3. If it is required to be amended, that can also be done. Subject to provisions of Rule 56. अपन कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? जब हम Rule 58 पढ़ रहे हैं, 56 ऊपर था, जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेंटेन करने वो सारा रूल था। Any person engaged in transportation business shall maintain records of goods transported, delivered, in transit, मतलब आपको सारा का सारा मूवमेंट ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। Every owner or operator of a warehouse shall maintain books of accounts with respect to the period which remain in the warehouse. से warehouse में कब एंट्री आया, warehouse से कब बाहर गया, ये भी सारा आपको डिटेल्स रखना। एडिशनल रिकॉर्ड्स इफ द कमिश्नर फील्स के नहीं आपने ये सब तो मेंटेन किया, इट इज डिसेंट, फाइन, थैंक यू, ये भी मेंटेन कर लेना। मेंटेन पावर ऑफ कमिश्नर टू परमिट मेंटेनेंस ऑफ records, but the commissioner feels that it is necessary, and the commissioner also says that I understand you cannot maintain all the records, therefore I will give you a record, reasons to be recorded in writing, and I shall then say you के ठीक है सारा मेंटेन नहीं कर सकता ना,
कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना तो मेंटेन कर लेता हूं, कम से कम इतना मेंटेन कर अकाउंट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, this clause is already done away with. However, a cost accountant और चार्टर्ड अकाउंटेंट को राइट था कि आप एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरोगे if the turnover crosses up a certain limit, but this is already done away. डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आप लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन, वो बोलते हैं सेक्शन 73 और 74 फॉलो। पीरियड ऑफ रिटेंशन, द फाइनल टॉपिक फॉर दिस लेक्चर एटलीस्ट, क्योंकि आगे ई-वे बिल है, ई-वे बिल पूरा दिन खाएगा। Section 36 of the CGST Act provides that every registered person required to maintain books of accounts shall retain them until the expiry of 72 months from the due date of furnishing annual return for the year, which means annual return की जो due date थी वहां से 72 मंथ्स तक आपको डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज 72 मंथ्स, 5 साल 6 साल तक आपको डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अब अगर आपका मैटर लिटिगेशन, इफ देयर इज अ रिवीजन, देयर इज अ प्रोसीडिंग और देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन, तो वो बोलते हैं मेंटेन इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year after the final disposal or for a period as specified above, whichever is later. So it is like normal case 72 months from annual return due date, and litigation case is later of 72 months from annual return due date or 1 year after final disposal. Are you clear till here? Yes, sir. Section 35, 36, period of retention of recording, accounts and records, as well as rule 56, 58. I believe it is all clear to you. Thank you so much for watching this video, and stay tuned for more upcoming videos.